Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and how the month of December 22 is going to pan out for the Pisces Ascendant people. I have stated earlier also in my videos that Ascendant Lord is passing through the first house and this is going to create an excellent position for all of you. Jupiter is considered a planetary heavyweight and whenever it passes through the first house, it generally introduces good things in the life of an individual. In this case, it is passing through its own sign. So all the benefits that are associated with Jupiter, including gain in knowledge as well as gain in your weight are going to happen. Most of the Pisces ascendant people are peace lovers. Pisces is also a sign that denotes spirituality. So you can make a lot of progress on the spiritual front during this time frame. Jupiter will continue to aspect your seventh house and it will provide you an opportunity to start your own venture or business. And its fifth aspect will also protect your progeny. People who are involved in education, artistic work and speculation will continue to see a good time in December as well. December is an important month for you because Mercury, Sun and Venus are going to create a stellium in your 10th house of profession. This is going to be an excellent time on the professional front because Mars is also going to aspect this 10th house. So in total, energies of four planets is getting assimilated in the 10th house. So you will also see a lot of enemies getting activated on your work front in the second half of December. So you need to be cautious while dealing with them. If you are in the field of insurance, taxation, research, surgery, mining, manufacturing, and any field that is related to technology, then this month will be exceptionally good for you on the professional front. But all the other profession related people will feel hurdles from their bosses or people who are holding a position of authority in their organization. They will act as a roadblock in their progress. So it is better to avoid arguments with such people in this month. Rahu will continue to sit in your second house and this Rahu will make sure that it harasses you till the time it is sitting here. Rahu introduces weird kind of a diseases that are related to teeth, gum and upper palate, makes an impact on your speech in such a way that whenever you speak with your family members, they get hurt because of your words and you don't realize it. This Rahu creates misunderstanding with your family members. So you need to be very cautious when you are dealing with your family members till the time Rahu is transitioning through this sign, which is till November 23. Now there are also certain dates when you need to be very careful, and these are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house. So for your ascendant, these dates are 14th and 15th of December, 19th and 20th of December and 27th and 28th of December. Just be very cautious during these 6 dates and avoid taking any crucial decision. As I have indicated earlier, since this stellium is getting created in the 10th house, depending on what kind of an MD you are undergoing, this is going to give you a jump in your profession. If you are related to those areas that I have stated earlier in the videos, then this month professionally will be very good for you. And if you also happen to undergo any of the MD related to Mercury, Venus and Sun, then the good results will compound further. In a nutshell, in this month, focus is all going to be on your profession and things that are associated with it. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि मीन लग्न वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, लग्नेश लग्न से ही गुजर रहे हैं गुरु, और जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब तक लग्नेश यहाँ बैठे रहेंगे अप्रैल 2023 तक, तब तक सारे आप मीन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु एक ज्ञान का ग्रह है और मीन राशि स्पिरिचुअलिटी की राशि है, तो जितने भी लोग स्पिरिचुअल चीज़ों में प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनके लिए ये गुरु बहुत ज़्यादा सहायक होता है। मीन राशि में वैसे भी सारे लोग शांति प्रिय होते हैं और इन लोगों को हमेशा लोगों से झगड़ा वगड़ा करने में ये लोग अवॉइड करना ही पसंद करते हैं। इसीलिए ये प्लेसमेंट अगर आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। गुरु यहाँ से सप्तम भाव को देखेगा, तो जितने भी लोग अपना स्वयं का बिजनेस चालू करना चाहते हैं अप्रैल 2023 तक, वो इस तरह का काम कर सकते हैं। गुरु की पांचवी दृष्टि आपके संतति स्थान को प्रोटेक्ट करती है और जितने भी प्रोफेशंस पंचम भाव से देखे जाते हैं, यानी कि शिक्षा से जुड़ा व्यवसाय या फिर कोई भी
कला क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय या स्पेक्यूलेशन से जुड़ा हुआ व्यवसाय, ये सब में गुरु की 5वीं दृष्टि प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर जो मुख्य बात हो रही है वो ये है कि 3 ग्रह एक साथ जमा हो रहे हैं दशम भाव में और उन पे मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इसकी वजह से दशम भाव जो कि आपका कर्म स्थान है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है दिसंबर के महीने में, खास करके जब सूर्य 15 दिसंबर के बाद यहाँ आ जाएंगे। तो दिसंबर का जो सेकेंड हाफ होगा उसमें बहुत ज्यादा ग्रहों की ऊर्जा दशम भाव में रहेगी। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन से प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको ये इस तरह का ट्रांजिट फेवरेबल होगा। तो अगर आप रिसर्च से संबंध रखते हैं व्यवसाय का, या इंश्योरेंस टैक्सेशन में हैं, सर्जन हैं आप, माइनिंग से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है, तो ये मंथ आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन इनके अलावा जितनी भी आपके प्रोफेशंस हैं उसमें तरह तरह के अड़ंगे आएंगे, खास करके उन लोगों से जो आपके बॉसेस हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की में बहुत ऊपर बैठे हुए होते हैं। उन लोगों से आपके आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए यहाँ पर किसी के भी साथ वाद विवाद टालिए, खास करके उस व्यक्ति के साथ जो आपके कंपनी में या प्रोफेशन में आपसे ऊपर बैठा हुआ हो, नहीं तो फिर ये लेने के देने पड़ने वाली सिचुएशन हो जाएगी। राहु आपकी द्वितीय भाव में बैठा रहेगा और ये यहाँ पे आपके सेकंड भाव से जुड़े हुए चीजों को खराब करेगा। देखिए, राहु किसी भी भाव में छिद्र लगाने का काम करता है, तो यहाँ बैठ के आपकी वाणी को खराब करेगा, आपके अपने परिवार वालों के साथ गलत फहमियां पैदा करेगा, यानी आपकी स्पीच से आपके फैमिली मेंबर्स हर्ट हो जाएंगे, या फिर आप कहना कुछ और चाह रहे होंगे और वो मतलब उसका कुछ और निकालेंगे। और ये राहु इस तरह के गलत फहमियां पैदा करने में एक्सपर्ट होता है। तो आप जब भी अपने परिवार वालों के साथ बात करें, बहुत सोच समझ कर बात कीजिए, नहीं तो फिर बात का बतंगड़ बनते हुए देर नहीं लगती। यहाँ पे बैठ के राहु आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में भी तरह तरह के रोग फैलाने का काम करता है। तो ये कुल मिला के अच्छी स्थिति नहीं कहलाती राहु के लिए, और आपको इन सारी चीजों से सावधान रहना पड़ेगा जब तक राहु यहाँ बैठा हुआ है। नवंबर 2023 तक अपने परिवार वालों के साथ बहुत सोच समझकर डील कीजिए। अब आपके महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब चंद्र 6, 8, 12 से गुजरता है। इस समय आपकी मानसिक स्थिति कुछ अच्छे डिसीजंस लेने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती, तो इन दिनों में कोई भी की डिसीजन लेना आपने टालना चाहिए। तो दिसंबर में ये दिन है 14 और 15 दिसंबर, 19 और 20 दिसंबर, और 27 और 28 दिसंबर। इन दिनों में आप केयरफुल रहिए और कोई भी की डिसीजन लेना टालिए। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो प्रोफेशनल फ्रंट पे ये बहुत अच्छा समय होगा, खास करके उन प्रोफेशंस के लिए जिनका मैंने पहले उल्लेख किया। इसके अलावा अगर आपकी बुध, शुक्र या सूर्य की ही महादशा चल रही है, क्या किसी भी ऐसे ग्रह की महादशा जिनका नक्षत्र स्वामी इन तीनों में से कोई एक हो, तो भी आपको प्रोफेशनल फ्रंट पे दिसंबर में चमकने का मौका मिलेगा। ये पूरा महीना आपकी सारी ऊर्जा दशम भाव में ही लोकेटेड है, तो आपको प्रोफेशन संबंधी रिजल्ट ही बहुत स्ट्रांगली मिलेंगे। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।